Hello students, welcome back for the online classes of literature. I have provided you one video which has the summary of chapter number 7, the open window. Now I am going to explain you line wise the exact meaning of this chapter. If you have any problem in the summary section of this chapter, you may ask. I will be there to help you. Now, you have to focus and pay attention on the exact line-wise idea of this chapter. So kindly listen this video and try to understand each and every bit from the chapter number 7. Okay, in the previous video which I have shared you in the link, I have explained that this chapter is about the self possession of Veera. How does she create stories by her own on the every moment she observes. Now we will look after how does the accident goes through and how does the events goes through in this chapter. So be ready and listen carefully. I am going to explain from the very first line. As you know, Mr. Frompton Nuttall, who was suffering from nervous breakdown, he was advised to go to some farm places where he can be cured very easily. Doctor has advised him to go to the farm places or some places where where the environment is peaceful. So he tried and he found a place which was Mrs. Sapleton house. He reached there and found a lady who is 15 years age or somewhat near about that, was welcoming her, and the argument and the conversation goes on from here. Now listen. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. Okay. Now, when Mr. Frompton reached Mrs. Sapleton house, he found a 15-year-old girl who said that my aunt will be down presently, Mr. Nuttall. उस लड़की ने कहा कि मेरी जो आंट है मिसेस सैपलेटन वो जल्द ही आ रही होंगी, नीचे आ रही होंगी, तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं. ठीक है. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी, तब तक आप मुझसे बात कर सकते हैं. Frampton Nuttall endeavored to say the correct something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. अब Frampton Nuttall यहाँ पर endeavored का मतलब होता है बहुत ही परिश्रम से, मतलब साहस करके. ठीक है, करेज. वो उनके पास इतना करेज नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बोलूं कि ये जो नीस है, मतलब उनकी जो मिसेस सैपलेटन की जो भतीजी है, उसको मैं इम्प्रेस कर सकूं या फिर कुछ ऐसी बातें करूं. उनके पास ये साहस, करेज नहीं हो पा रहा था. और वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ बोलूं कि जिससे कि मिसेस सैपलेटन जब नीचे आए तो उनको बुरा लगे. तो ये सारी बातें सोच करके वो थोड़ा सा झिझक रहे थे, उनके मन में हेजिटेशन था. ठीक है. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर whether these formal visits on a succession of a total stranger would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब क्या होता है कि वो ये भी सोच रहे थे कि यहाँ पर मैं अगर इससे बात करूँगा तो उनके मन में ये भी शंका था, ये भी डाउट था कि ये सब जो फॉर्मल विजिट्स हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे रहूँगा, तो क्या इससे मेरा जो नर्वस ब्रेकडाउन का जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, क्या ये सही भी हो सकता है कि नहीं. इस तरीके की सारी बातें वो चल रही थी उनके दिमाग में. ठीक है. नाउ लिसन.
Next paragraph. I know how it will be. His sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat, you will bury yourself down there, and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. Now listen, who says this? फ्रैम्पटन नटल. अब वो मिसेस सैपलेटन की बातें बताते हैं कि वो उनको लेटर्स लिखा करती थी और यहाँ के लोगों के बारे में बताने की कोशिश किया करती थी कि यहाँ के लोग बहुत ही शांतिपूर्ण हैं, पीसफुली रहते हैं, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर के रह सकते हो, जिससे कि तुम्हारा क्या होगा, इलाज भी हो जाएगा, और वहाँ पर बैठे बैठे जो उदास बैठे रहते हो या फिर उदास होकर के घूमते फिरते रहते हो, उससे तुम बच सकोगे. ठीक है, इस कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीमारी का जो इलाज है वो यहाँ पर आसानी से हो सकता है. वो उन्होंने इतनी बातें कही. Frampton wondered whether Mrs. Sapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. ठीक है, वो ये सोच रहे थे कि मैं ये सारी बातें मिसेस सैपलेटन को बताना चाहता था, लेकिन मुझे ये सारी बातें अब किसको बतानी पड़ रही हैं, नीज को बतानी पड़ रही हैं. तो वो सोच रहे थे कि अब ये सारी बातें ये जो वीरा है सुनकर कि क्या रिएक्शन देगी, ये सभी चीज़ें वो सोच रही थी. नाउ लिसन, डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, asked the niece when she judged that they had sufficient silent communion. ठीक है, अब जब उसने देखा वीरा ने कि हम दोनों बहुत ही मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, तो उसने फिर से एक क्वेश्चन पुटअप किया वीरा ने कि डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, क्या आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं. ठीक है. हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन. हार्डली अ सोल. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर एट द रेक्टरी, यू नो, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. ठीक है, वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे बिल्कुल बहुत ही कम जानकारी है. मतलब 1-2 लोगों के बारे में मुझे पता होगा और मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. जैसा तुमको पता होना चाहिए कि मेरी जो बहन थी वो यहाँ पर रहा करती थी. ठीक है, रेक्टरी का मतलब यहाँ पर है एक ऐसा घर जहाँ पर या फिर हम कह सकते हैं रेक्रेटर का घर. अब ये पर्टिकुलरली कौन सा घर होता है इसके बारे में आपको डीप नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है. ठीक है, तो एक घर के तरीके से हम ले सकते हैं. तो वहाँ उस घर में वो मेरी बहन रहा करती थी और अपने लेटर्स के थ्रू यहाँ के कुछ नेबर्स का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था. ठीक है, तो उन्हीं के इंट्रोडक्शंस के थ्रू ही मुझे मिसेस सैपलेटन के बारे में पता चला है और मैं यहाँ पर रहने आया हूँ. ठीक है. सो नाउ लिसन, ही सेड हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर एट द रेक्टरी, यू नो, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. He made the last statement in a tone of distinct regret. मतलब वो लास्ट में मतलब रिग्रेटफुल वॉइस में बोलता है, मतलब उसे पछतावा था उसे कि मैं अभी किसी के बारे में जानता नहीं हूँ, बहुत कम ही लोगों के बारे में जानता हूँ, तो ऐसा उसको पछतावा था. ठीक है. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी. और उनके इतना कहने पर ही आगे से आकर के, फ्रंट से आकर के वीरा बोलती है कि तब तो आपको मेरी आंटी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है. नाउ द रिप्लाई कम्स, ओनली हर नेम एंड एड्रेस. वो कहती हैं कि मैं मतलब मिस्टर फ्रॉम्पटन कहते हैं कि नहीं, मुझे तो सिर्फ उनका नाम और एड्रेस ही पता है और कुछ भी चीज़ें नहीं पता है. एडमिटेड द कॉलर. ही वॉज वंडरिंग वेदर Mrs. Sapleton was in the married or widowed state. ठीक है. He was wondering whether Mrs. Sapleton was in the married or widowed state. An indefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. ठीक है, वो ये सोच रहे थे. ठीक है, वो सोच रहे थे कि पता नहीं मिसेस सैपलेटन विडोड हैं या मतलब विधवा हैं
या फिर मैरिड कंडीशन में है, उन किस स्टेट में है, उसके बारे में वो सोच रहे थे, क्योंकि उस कमरे में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे कि ये पता चले कि यहाँ पर कोई मेल पर्सन भी रहता है। ठीक है ना। द नेक्स्ट पैराग्राफ, हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. ठीक है, अब वो वीरा, जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था कि उसको स्टोरीज़ बनाने का बहुत ही शौक़ है, वो हर एक मोमेंट पर स्टोरीज़ बनाती है। तो यहाँ से उसका स्टोरी क्रिएशन का टाइम आ गया है, वो स्टोरीज़ बनाना देखो स्टार्ट कर रही है। कैसे? हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago, जब उसने बताया कि 4 साल पहले मेरी बहन यहाँ पे रहती थी। ठीक है, तो अब उसने अपना दिमाग लगाया और उसने कहा कि यहाँ पर 3 साल पहले ही वो ट्रेजिडी हुई थी, जब आपकी बहन रहती थी तभी वो ट्रेजिडी हुई थी। कौन सी ट्रेजिडी थी, कैसी ट्रेजिडी थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हर ट्रेजिडी, आस्क्ड फ्रैम्पटन, somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place। ठीक है, अब जैसा कि देखो सैपर्टन ने कहा था ना, मतलब उसके बहन ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो जगह है वो बहुत ही शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। तो ट्रेजिडी का नाम सुन करके ही वो थोड़ा सा नर्वस हो गया कि इतने शांतिपूर्ण जगह पर, इतने पीसफुल जगह पर ट्रेजिडी कैसे हो सकती है, क्या ट्रेजिडी थी, वो थोड़ा सा अब घबरा रहा है। ठीक है, यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस, indicating a large French window that opened onto a lawn. Now listen, जब फ्रॉम्पटन थोड़ा सा घबराते हैं और वो कहते हैं कि इतने पीसफुल इन्वायरमेंट में, इतने पीसफुल शहर में ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रेजिडी कैसे हो सकती है, तो वो वीरा अब एक फ्रेंच विंडो की तरफ इंडिकेट करते हुए कहती है कि क्या आप वो देख रहे हैं, वो विंडो देख रहे हैं, हमने उसे अक्टूबर के आफ्टरनून में आखिर उसको क्यों खुला रखा है, आप क्या ये सोच पा रहे हैं? आप सोचिए ज़रा कि हम आखिर उस विंडो को क्यों खोल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब बात ये समझ में आनी चाहिए हमको कि एक्चुअली में ये स्टोरी जिस रीज़न में, जिस लोकेलिटी में लिखी गई है, वहाँ पर अक्टूबर के मंथ में बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब सनशाइन बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अक्टूबर के महीने में अब आप उसको खिड़कियों को बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। अब तो इस समय में काफ़ी गर्मी होती है। ठीक है, तो आपने ये खिड़की क्यों खोल के रखा? उसका कहने का मतलब ये था कि इस समय अक्टूबर के महीने में गर्मी ज़्यादा है, तो आखिर वो खिड़की खुली क्यों है, वो पूछता है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी? लेकिन क्या उस विंडो, जो आपने ट्रेजिडी की बात की है, क्या उस ट्रेजिडी का रिलेशन इस विंडो से तो नहीं है? ऐसा वो पूछने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है कि किस तरीके से वीरा ने अपना स्टोरी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ठीक है, अब वो क्या बताएगी मिस्टर फ्रॉम्पटन को, कौन से इंसिडेंट के बारे में बताएगी, फिर उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, फिर आगे की स्टोरी को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, और फिर से लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन यू हैव टू लिसन दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।